Welcome to a new lecture. Let's not call it a video lecture, but still it's a video lecture. और आज हमें स्टार्ट कर रहे हैं जीएम का जो एलिमेंट्री कोर्स है फिज़िक्स का, फॉर बिगिनर्स, उनके लिए शुरुआत कर रहे हैं। तो बेसिकली स्टार्ट जो होता है वो तो बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट होता है। सो आई एम सजेस्टिंग यू टू गो टू a website called gmpb.in and get there, find the mechanics course, and just after it you will get a course called basic mathematics, and this basic mathematics describes all the mathematics you need to study the physics. The book will basically serve as a language tool for physics studies. So go there and find it. And if you want anything else as a supplement, just kindly let me know, and I will try to fulfill your wishes. For now, I'm going to describe the physics, the very first course of physics called mechanics. And as you can see here, आपको जानना जो होता है परहैप्स कि मैकेनिक्स क्या है, व्हाट इज़ मैकेनिक्स. So the first thing I would like to tell you about mechanics is that this is the oldest of the physical sciences, even older than the physics itself. When there was no physics, mechanics was still there. Later we included this in our physics subject, but this is older than physics itself, and so you can say that it is the oldest of all the physical sciences. But what is mechanics itself? It is basically the study of motion of objects. In most simplest words, you can describe mechanics as the study of the motion of the objects. And basically it contains the information regarding all the basic laws of physics. Still, there are many other basic laws as well, but I'm talking about basic laws of physics, like conservation of energy, conservation of momentum, linear momentum, angular momentum, and it goes up to them, and it describes in general sense we can say that the mechanics describes all the basic laws of physics. So you need to know from this point of view. And though you cannot achieve much in modern engineering by simply studying mechanics, सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ के ये मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत कुछ उसके बारे में बहुत कुछ डिस्कवरी तो आप नहीं कर सकते, but still you will be able to make calculations regarding path of an artillery cell or a space probe like Chandrayaan. इन सब चीज़ों के पाथ तो आप उसके बारे में कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो. Other things, you can do analysis of tracks formed in bubble chambers. If you have ever seen it, the bubble chamber. And most importantly, you will be able to analyze the collision effects, decay, and the interaction of elementary particles. Collision basically हम momentum exchange का गेम प्ले करते हैं, तो उसके कुछ एनर्जी कंसिडरेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में आप मैकेनिक्स पढ़ के कुछ you will be able to make some calculations. But
पढ़ के क्या अचीव कर सकते हैं, इन सब के बारे में तो इन्फॉर्मेशन हो गई, बट लेट वी स्टार्ट स्टडिंग समथिंग. Basically, the first thing we study in mechanics is called kinematics. Kinematics. And kinematics is something that describes you the mathematics of motion without exactly knowing the reason behind the motion. Look, when we describe motion, we are dealing with kinematics, and when we relate motion to the forces associated with it and to the properties of the moving objects, we are dealing with dynamics. We simply name kinematics and dynamics in physics. Engineering, they will tell you you are studying kinematics and kinetics. Kinetics when you relate motion with the forces associated with it, and kinematics when you don't associate the forces to the properties of the moving objects. You simply call it kinematics. But we call kinematics and dynamics in physics, and it is quite common. So we first need to define some kinematical quantities, and we will try to study them in detail. And but we are not going to study the kinematics, the whole of the kinematics here, because there are many things of kinematics here. To study kinematics, we need to differentiate, divide bodies into two parts, like a part will be called a particle. एक को सिंपली आप पार्टिकल की मदद से, मतलब एक को आप पार्टिकल काइनेमेटिक्स को हम लोग डिवाइड करेंगे इस तरीके से कि हम लोग बोलेंगे कि पहले कि वी आर गोइंग टू स्टडी द काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल, फिर हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ ए बॉडी, इस टाइप से पढ़ाई करेंगे. अब बोलोगे क्यों ऐसा क्यों ज़रूरी है? तो लुक, we already know that bodies are simply a real object. Call it a real object. एक रियल ऑब्जेक्ट रोटेट भी करता है. जब ये मूव करता है तो रियल ऑब्जेक्ट कैन रोटेट एज इट मूव्स. बेसबॉल का बैट या क्रिकेट का बैट जब आप ड्राइव करते हो सिंपली बैट से, तो ये सिंपली ट्रांसलेट ही नहीं करता, ये स्पिन भी करता है. आप इसको स्पिन भी कराते हो, या फिर बॉडीज वाइब्रेट भी करती हैं एज इट मूव्स. जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स, अगर आप क्लोजली वॉच करें फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स को, it can vibrate as it moves. And there are many other forms of motion, not only rotational and vibrational mode, but there are many other modes too. But from the point of motion, we will talk about some specific part of motion from the point of view of mechanics. हम लोग मोशन में कुछ डिफरेंट किस्म के मोशंस को कंसिडर करेंगे, लाइक उनके नाम रखेंगे कुछ इस टाइप से: ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन टू. क्योंकि होता ये है कि एक्चुअली देयर इज नो सच थिंग इन नेचर एज ए पार्टिकल, एज ए पॉइंट. Well, there are something, but they are beyond our reach, the fundamental particles, electrons, protons. They can exist, but हमारी दुनिया में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसमें हमें पॉइंट टाइप की चीज़ें तो हमें पता भी नहीं चलती कि क्या, हम दिखाई भी नहीं पड़ती, तो हमारे सेंसेस उनको कंसीव नहीं कर पाते.
But the concept of a particle is more useful than studying real objects. जो रियल ऑब्जेक्ट्स, रियल बॉडीज जो हम लोग देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, इनके बारे में ऑब्जर्व करने के लिए ज़रूरी है कि वी शुड नो अबाउट द पार्टिकल्स। क्यों? इसके कारण बहुत जल्दी ऑब्वियस हो जाएंगे आपके सामने कि पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट रियल बॉडीज़ के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितना ज़रूरी है। और मज़े की बात तो ये है कि ये जो रियल बॉडीज़ हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स, they can behave to a very good approximation as though they were particles। मतलब उनको भी अप्रोक्सीमेट करके हमको उनको पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लाइक यू कैन सी दिस पिक्चर हियर, द पिक्चर एट योर स्क्रीन, यू कैन सी ए बॉडी। दिस इज a big body, this one. It can rotate, translate. It is moving not along a straight line, but it's a curved line along which it is moving. और मैंने इस बॉडी में कहीं ना कहीं एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको जेड एक्सिस यू आर नॉट एबल टू सी, वो मैंने इम्बेड कर रखा है इस बॉडी में। एंड एज द बॉडी मूव्स, ये एक्स एक्सिस हमेशा ये इसका एक्स एक्सिस, ये बॉडी कहीं भी जाता है लेकिन इसका जो एक्स एक्सिस है ये हमेशा अपने फर्स्ट पोजीशन के पैरेलल है। और सेम गोज विद द वाई एक्सिस। ये बॉडी कुछ इस पाथ पर ऐसे मूव कर रहा है कि इसके एक्सिस इस अपने फर्स्ट पोजीशन के हमेशा पैरेलल है। और इससे आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। और वो क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दो द पाथ टेकन बाय द बॉडी इज नॉट नेसेसरली ए स्ट्रेट लाइन, बट थ्रू आउट द मोशन एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी अंडरगोज द सेम डिस्प्लेसमेंट एज एवरी अदर पॉइंट। You can tell me कि you don't know the displacement, but I am not going to believe it because you know something called displacement from your earlier studies of class 9. So I hope you know the displacement. और सबसे मज़े की बात है कि मोशन के दौरान किसी भी मोमेंट पर आप अगर इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तो इस बॉडी के हर पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होगा एक मोमेंट पर। इस बॉडी में जितने भी पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स, हर पॉइंट का वेलोसिटी एक मोमेंट पर एक ही होगा। अब ये कैसे होगा, कैसे विजुअलाइज करेंगे आप, लेट्स सी। बट अगर ऐसा होता है, अगर आप किसी बॉडी के मोशन में ऐसा फील करते हैं कि वो बॉडी चाहे किसी भी पाथ पर मूव कर रहा हो, चाहे वो पाथ स्ट्रेट हो या कर्व हो, किसी भी पाथ का मतलब पाथ स्ट्रेट हो या कर्व हो, लेकिन उसमें उस बॉडी के अंदर किसी पॉइंट पर अगर हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस एम्बेड कर दें और उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के जितने भी एक्सिस हैं, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के जितने भी एक्सिस हैं, वो पूरे मोशन के दौरान थ्रू आउट द मोशन the axis remains parallel to its first position, the motion is called translation। इस मोशन को ट्रांसलेशन तो बोलते ही हैं, साथ में एक और चीज़ भी होती है। इस ट्रांसलेशनल मोशन के लिए किसी भी बॉडी को आप पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि किसी भी टाइम इंटरवल में इस बॉडी के एक पॉइंट का जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उतना ही डिस्प्लेसमेंट दूसरे पॉइंट का भी हो रहा है। इसका मतलब किसी भी एक मोमेंट पर एक पॉइंट की जितनी वेलोसिटी है, हर पॉइंट की उतनी ही वेलोसिटी है। इसका मतलब सबकी वेलोसिटी में चेंजेस भी अगर हो रहे हैं तो साथ में हो रहे हैं। दैट मीन्स किसी एक मोमेंट पर इस बॉडी के किसी एक पॉइंट का जितना एक्सेलरेशन है उतना ही हर पॉइंट का एक्सेलरेशन है। आई गेस यू नो समथिंग अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इफ यू नॉट,
come again by studying velocity and acceleration and watch this video. तो इस पूरी बॉडी को हम किसी एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं एज फार एज काइनेमेटिक्स इज कंसर्न्ड. इसके मोशन का मैथमेटिक्स कैलकुलेट करने के लिए पूरे बॉडी को हम एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं. दैट इज़ वाई आवर बॉडी, आवर बिग बॉडी इज अ पॉइंट. और फिजिक्स में बेसिकली जब हम बोलते हैं पार्टिकल या पॉइंट, तो हमारा मतलब यही होता है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ. और अब बोले कि अब पार्टिकल, तो हम लोग ऐसे ही पार्टिकल जो अभी ट्रांसलेट कर रहे हों, और पार्टिकल का मतलब वही जो मैंने आप तो या तो पॉइंट के बारे में सोचो या कैसे बॉडी के बारे में सोचो, जिस बॉडी के किसी भी पॉइंट पर अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस एम्बेड कर देते हो तो मोशन के दौरान उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के सारे एक्सिस अपने फर्स्ट पोजीशन के पैरेलल रहते हैं थ्रू आउट द मोशन. तो उस मोशन को हम लोग ट्रांसलेशन बोलेंगे. और ट्रांसलेशन के लिए किसी भी बड़े से बड़े बॉडी को भी हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे. सो इज़ आवर पार्टिकल. और हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल से. पार्टिकल के बाद बॉडीज की भी बारी आएगी. तब तक आप काफ़ी मैच्योर हो चुके होंगे. लेकिन फ़िलहाल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल. अब ये काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल में कुछ एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके बारे में सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है. पहला कॉन्सेप्ट तो वही है, दुनिया का सबसे पहला कॉन्सेप्ट मोशन में, द डिस्प्लेसमेंट. और अब मैं खुल के बात कर सकता हूँ कि इफ़ यू हैव ए पॉइंट एंड दैट इज़ मूविंग एन आर्बिट्ररी पाथ, कर्व पाथ, और ये उसका ओरिजिन है दिस वन, और ये उसका डेस्टिनेशन है. तो डिस्प्लेसमेंट इज समथिंग कि सबसे पहले आप रिलेट कर दो ओरिजिन को डेस्टिनेशन से, और ओरिजिन टू डेस्टिनेशन एक एरो लगा दो, एंड दैट थिंग विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. एंड दैट द पाथ ऑफ द बॉडी will be simply called the path length or the distance traveled by the body. और अगर आपको ज़िंदगी में चलने के लिए हमेशा सीधे रास्ते मिले हों तो यू आर लकी पर्सन. आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहा होगा. अदरवाइज ये जो पाथ लेंथ है, जब कभी चलने को सीधा रास्ता नहीं मिलता तो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा लेंथ में. दोनों के लेंथ को कंपेयर करेंगे तो. सो दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट. बट मैंने देखा है अक्सर लोगों को, अगर सबको सेम ही पाथ पर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कह दिया जाए तो कोई जल्दी इस पाथ को कवर कर लेता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है. सो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल जानने के बाद, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज बेसिकली द पाथ लेंथ, और इनको जानने के बाद डिस्प्लेसमेंट के बारे में आई वांट टू कमेंट समथिंग. माय कमेंट इज कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर एंड दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर. And when I tell people कि displacement is a vector and quantities that behave like displacements are called vectors, so they sometimes wonder, what is this? Is it a definition you teach? So displacement is such a powerful physical quantity. So you need to know something about vectors as well. And path length या डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है उसमें वेक्टर जैसी कोई बात नहीं होती. डिस्प्लेसमेंट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आफ्टर ऑल ज़िंदगी में आप कहाँ से चल के कहाँ पहुँचे हैं वही मैटर करता है आपके लिए. सो नेक्स्ट थिंग्स आर नथिंग बट इफ़ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाउ फास्ट आर यू? सो इट इन्वाइट्स कैलकुलस. When we talk about rate of change of something, how fast are you? It is basically treated by calculus, and calculus was discovered by Newton. So we are going to talk next about rate of change of something with respect to time.
and those things we are going to deal with the help of calculus. So it will covered in the next few lectures. Lectures are coming every day. अब आप छोटे छोटे लेक्चर्स के लिए तैयार हो जाओ. So thank you very much for watching.